Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the virtual campus of the ComSat Institute of Information Technology for the course Learning Management System with the course code of CSC 350. And you know, this lecture series is coming from the virtual campus Islamabad. Students, we are in the middle of Moodle, the learning management system. Yes, of course, we are in the middle, and within one or two lectures, the Moodle will end, and then we will start another software of the learning management. Moodle, just to remind you about the Moodle, it is modular object-oriented dynamic learning environment. So basically, through Moodle, we create an environment. From the previous lecture, very quickly reviewing, we discussed assignments in Moodle. How assignments are constructed, how assignments can be uploaded, what type of assignments are designed, and what different facilities are provided in Moodle. Students, in terms of assignments, we discussed the online text creation, uploading. Students learn how to upload their assignment, and we discussed how the students are facilitated through learning management system of Moodle to make their assignment, and how to share the answers to the assignment, solution of the assignment with the teacher, with the instructor, and how instructor and the teacher can design different types of assignments in the Moodle. And in this creation of assignments, of course, the teacher can give you different options to attempt the assignments. Then while giving you the options, the instructor can put certain restrictions. These restrictions can be in terms of time. For example, you are allowed to submit the assignment up till so and so date and time, and the restriction can also be applied in terms of the limit of the answers, that the answers should be within this limit. In terms of formatting, the format of the assignment, the teacher can restrict the format as to the students who are allowed to submit their assignment within that format. And if you are not following that format, the assignment is either bounced back or it goes wasted because the teacher does not check it. Similarly, we also discussed some other restrictions which can be applied, which can be put on the submission of the assignment, the quality and the quantity of the assignments, and different other perspective of the assignments which teacher and the instructor or the trainer can define and implement. The software is blind. Once it is developed, once it is made understood as to the quality and the quantity, the weight and the substance of certain assignments or the work, then it strictly apply. It does not look into the cases, the case-to-case basis. So it does not distinguish between the weak and the sharp student. It does not distinguish between the good and the bad students. Rather, it evaluates each assignment on the given standards, and obviously these standards are defined by the instructor through Moodle or similar software.
Uh, Advanced uploading gives the student an option of uploading more than one file. If the assignment includes more than one file, they can be uploaded, and the weight, or the you can say of course, weight of the assignment can be defined, up to what weight it is uploadable and up to what weight it is not acceptable to the system. We also discussed at length the grading scheme in Moodle, how the answers are recorded and they are kept in the test bank of the Moodle, or the question bank of the Moodle, and then when you submit the assignment, how they are automatically graded. Now here is the point, the place where the software distinguishes between the good and the bad students. And the good students are generally given distinction in the sense that the software can easily understand that your answer is up to the mark and you deserve better marks. And the grading is again done once the teacher has set the program onto the grading scheme, what type of grading is applied, how many marks, marks make the percent of the total, and then what percent of the marks makes which grade. So there is option of quick grading system in Moodle. Well, before we start the new topics, the topics of discussion for today's lecture, as usual, one food for thought. Students, why this the learning management system of the type of Moodle or Slate or Neon or some other types which are used in different learning institutions. In the learning institutions, the leading institutions, there is some monitoring authority. There is some authority which monitors, which compares the quality and the standards of the educational institutions. And these institutions are generally known as, these monitoring institutions are generally known as the commissions of higher education. In Pakistan, HEC, known as the Higher Education Commission, is the monitoring authority which actually sets certain standards to evaluate each and every higher education institution on these standards. And then after the completion of certain academic period, the assessment is done by the HEC of these higher education institutions, and then a grading is announced. Now, in this measurement of grading on the standards identified by the higher education institutions, certain KPIs, the key performance indicators, are set. Now, each educational institution is evaluated on these KPIs, certain key performance indicators. Most of them are not quantifiable. They are qualitative in nature. But thanks to the advanced statistics and statistical techniques and some other indicators like econometrics, etc., these tools now enable us to convert
KPIs to the measurable format. Now the food for thought is, you need to develop a system wherein the key performance indicators are linked with certain computer programming, and through this programming these KPIs convert input to output, which is quantifiable, which is quantified and measured. These measurements then clearly should indicate the level of achievement of the educational institution while proceeding from day one to the last day of the academics. In simple words, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मेजरेबल इंडिकेटर्स देता है जिसको हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को एक प्रोग्रामिंग के ज़रिए लिंक किया जाए इनपुट और आउटपुट को, यानी KPIs के यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जब हम डाटा जो कि पूरे साल के दौरान इकट्ठा होता रहता है, जिसमें स्टूडेंट सर्वेज होते हैं, जिसमें फैकल्टी सर्वे होते हैं, जिसमें ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स का सर्वे होता है, जिसमें जब स्टूडेंट एंटर होते हैं उस वक्त का सर्वे होता है, और जब वो पास आउट होते हैं और एलुमनाई का सर्वे होता है, एम्प्लॉयर्स का सर्वे है जहाँ ये ग्रेजुएट्स या एलुमनाई किसी भी इंस्टीट्यूशन के जॉब करते हैं। इसी तरह टीचर्स की असेसमेंट होती है, इसी तरह जो उनके साथ सेक्रेटेरियल स्टाफ जो दफ्तरों में काम करता है उनका सर्वे होता है। ये सारे KPIs एक क्वेश्चनर के ज़रिए इनके कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो रिकॉर्डेड हों और साल के दौरान जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती जाए तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम ये इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करते जाएं, और एंड पे यानी क्वार्टरली या सेमेस्टर वाइज जब हम ये डाटा उसके अंदर डाल दें तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने ग्राफ बन के आउटपुट का या कोई और टूल सामने आ जाए जो कि क्वांटिफाइड हो, और उसके साथ ही HEC के जो आइडियल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी भी कैलकुलेशन साथ हो कंपेरेबल, कि हम HEC ने जो सेट स्टैंडर्ड्स दिए थे उनके आइडियली KPIs अगर 100 शो कर रहे हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो 100 से कितना नीचे है। तो ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में इस वक्त 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दें तो यूनिवर्सिटीज़ के वो मसले मसाइल हल हो जाएं जिसमें वो आजकल उलझी हुई हैं, जिसमें उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तो सेट हुए हैं लेकिन वो इसको इफ़ेक्टिव वे से अपना आउटपुट शो करने से कासिर हैं। तो आज के जो पिछले लेक्चर जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उसकी बेस पे ये एक मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट, आई होप आप इस पे वर्कआउट करेंगे कि किस तरीके से ये जो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं, जो परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स को शो करते हैं, इनके साथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है
कि जैसे जैसे हम इसमें इंफॉर्मेशन डालते जाएं तो हमारे सामने ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा आउटकम सामने आए और उस आउटकम की बेस पे फिर हम ये डिसाइड कर सकें, टाइमली डिसाइड कर सकें कि हम किन KPIs में कौन से KPIs हैं जिसमें हम पीछे जा रहे हैं और इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आज का फूड फॉर थॉट, और आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हमने लास्ट लेक्चर में असाइनमेंट्स को फोकस किया था, अब हम क्विज़ेस की तरफ जा रहे हैं कि क्विज़ेस जो हैं वो किस तरह इसमें बनाए जाते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसमें प्लग इन करने की ज़रूरत है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से हाइड करने की ज़रूरत है, और उसके साथ टाइमर किस तरह सेट किया जाए। इसके अलावा क्वेश्चंस कैसे डेवलप करते हैं ये हम पढ़ेंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर से स्लाइड रखी है ताकि आपको इसके आइकॉन्स जो है मैं साथ साथ रिमाइंड कराता जाऊं कि जब भी आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो ये आइकॉन्स जो है ये क्या शो कर रहे हैं। इसी तरह कॉमन कुछ सेटिंग्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इसमें फिर मूडल में ये मूडल की कौन सी विंडोज़ हैं, कौन से फंक्शंस हैं जहाँ पे ये चीज़ें हम प्लग इन कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के आमतौर पे क्या मीनिंग्स होते हैं। और जब हम मूडल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाएं तो वो पर्पसफुल हों और मीनिंगफुल हों, पर्पसलेस या मीनिंगलेस ना हों। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए फिर हम डिफरेंट क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन किस तरीके से मूडल में लिखी जाती हैं, किस तरह से डिस्क्रिप्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की हम उसके साथ एसोसिएट करते हैं ताकि स्टूडेंट को गाइडलाइन मिल सके कि वो टीचर की जो क्वेश्चन है टीचर ने दिया है, क्विज दिया है, उसको वो सही डायरेक्शन में आंसर कर सके। इसमें ऐसे राइटिंग क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस किया जाएगा, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, मैचिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं और किस तरीके से मूडल के अंदर इस फैसिलिटी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स आंसर कर सकें। इसी तरह कुछ एम्बेडेड आंसर्स जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, और एम्बेडेड क्वेश्चन आंसर्स में फिर फर्दर उनकी जो स्पेसिफिकेशन है, MCQs वगैरह वगैरह, उनका यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है, इसी तरह न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें, इनमें फिर कुछ डिटेल के MCQs कैसे एडजस्ट होते हैं, उनको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, ये हम इसको आगे लेके चलेंगे। और फिर इनसे रिलेटेड कुछ जो एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हमने स्टूडेंट्स को समझाना है कि वो अपने ग्रेड को बेहतर करने के लिए कैसे इसको समझे, और टीचर के लिए कि वो कैसे क्वेश्चन को उसके अंदर जनरेट करे या क्रिएट करे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन होगी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके अंदर कैसे, इसके अलावा ट्रू फॉल्स, एक और ऑप्शन आमतौर पे होता है जो पाकिस्तान में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं अक्सर अपनी क्लासेस में पूछता हूँ कि ट्रू स्लैश फॉल्स स्लैश अनसर्टन और उसके साथ ही रीज़न
ये भी आप मूडल में जनरेट कर सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन सही है तो इसकी रीज़न, गलत है तो इसकी वजह क्या है, और अगर आप समझते हैं कि अनसर्टन स्टेटमेंट है तो फिर उसकी वजह क्या है। तो ये मुख्तसर सा आज का हमारा लेक्चर होगा स्टूडेंट्स। तो एजेंडा के मुताबिक हम वापस अपने स्टार्ट में कि क्विज़ेस क्या है। Quizzes. Use quizzes if you want to set up a self-marking test for your students using a mixture of question types which can include multiple choice, true and false, short question answers, and with the quiz module you need to build up a bank of questions before you make the quiz. Student इसकी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना क्विज देने से पहले कि क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने हैं, क्या ट्रू फॉल्स देना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देने हैं या ऐसे टाइप क्वेश्चन देने हैं। तो स्टूडेंट्स ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इसमें कोर्स की नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो स्टूडेंट का लेवल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, टीचिंग टेक्निक्स बहुत मैटर करती है कि क्या टीचर ने स्टूडेंट को इस पैटर्न के ऊपर प्रिपेयर किया है या नहीं। एकदम से उनको सरप्राइज देने से क्लास के फेल होने का खतरा होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइकली टू फेल। इसके अलावा ख़ास तौर में MCQs में और ट्रू फॉल्स में ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ये कोर्स ना पढ़ा हो और वो एग्ज़ाम में या क्विज में बैठ जाता है, अटेम्प्ट करता है, तो उसकी एक जो छठी हिस्सा है या हम यूँ कहें कि एक कॉमन सेंस जिसको हम कहते हैं, कॉमन सेंस बेस पे वो तुक्के लगा के बहुत सारे सही आंसर अटेम्प्ट कर सकता है। तो इसलिए टीचर ने इस बात का ख्याल रखना है कि जिन लोगों ने पढ़ा है वो अटेम्प्ट कर सके, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो अटेम्प्ट ना कर सकें। तो क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हुए इस बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा शॉर्ट आंसर्स आम तौर पे इसका जो ट्रेंड है ये बढ़ रहा है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आर प्रेफर्ड। उसकी रीज़न क्या है कि स्टूडेंट के ऊपर जब वर्ड लिमिट लगा दी जाए तो स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर करते हैं कि वो सिर्फ पर्टिनेंट चीज़, पर्टिनेंट आंसर को, पर्टिनेंट कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूस करे और जो पर्टिनेंट नहीं है उनसे अवॉइड करे। जब हम ओपन ऐसे राइटिंग का देते हैं तो उसमें स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें इररेलेवेंट, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देता है। शॉर्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट को लिमिट करने में और उसको कंपोज करने में मदद मिलती है और स्टूडेंट और टीचर के लिए भी आसानी है कि वो टीचर कम वक्त में बहुत सारे आपके पेपर्स या क्विज़ेस जो है वो इवेल्युएट कर सकता है और उसको भी आंसर जो है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल सकता है। तो इसलिए इस बात का यकीन कर लेना चाहिए, इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए जा रहे हैं क्या वो कोर्स की नेचर के मुताबिक हैं। इसलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो नए टीचर्स भर्ती होते हैं उनके साथ उनको एक सीनियर टीचर के साथ अटैच किया जाता है ताकि ना सिर्फ वो पढ़ाने का तरीका सीख लें बल्कि क्वेश्चन पूछने का सलीका तरीका भी उनको आ जाए
कि किस पेपर में किन से कौन से सब्जेक्ट में किस किस्म के क्वेश्चंस अप्रोप्रिएट होते हैं। ये तो था बैकग्राउंड के क्विज़ेस डिज़ाइन करते हुए हमने किन बातों का ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट, क्विज़ेस मेकिंग क्वेश्चंस, क्विज़ेस में क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, ये आपको सेटिंग्स में बॉटम पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन बैंक, और इसकी कैटेगरी जो इधर राइट साइड पे जो दिखाई गई है क्वेश्चन बैंक। तो जैसे आप क्वेश्चन बैंक को एक्सेस करते हैं तो ये उसकी डिटेल जो है वो इस तरह से सामने आती हैं। यहाँ आपने ये पहला आप देखें ऑप्शन क्लिक किया गया है डिस्प्ले क्वेश्चंस फ्रॉम सब कैटेगरीज टू, क्वेश्चन की सब कैटेगरी जो है उनको भी इसी तरह अगर आप क्लिक कर दें आल्सो शो ओल्ड क्वेश्चन, तो ये तीनों ऑप्शन जो है साइमल्टेनियसली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी शो क्वेश्चंस टेक्स्ट इन द क्वेश्चन लिस्ट, इसी तरह द डिफॉल्ट कैटेगरी फॉर क्वेश्चन शेयर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट एसएसी, इसी तरह क्रिएट न्यू क्वेश्चन, जहाँ से आप ये ड्रॉप डाउन एरो से आप चूज करके ये कर सकते हैं। इसी तरह इनको आप सॉर्ट बाय नेम कर सकते हैं, और टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो आपको एक्सट्रीम राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं बुलेट पॉइंट्स, और नीचे एक आइकॉन है उससे आप समझ सकते हैं। और एक्शन जो है इनमें से कि इस क्वेश्चन के बारे में, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 जिसका नाम रखा है उसमें हम क्या ऑप्शन दे रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स को डिटेल लिखने के लिए कहा जा रहा है, या उसने सिंपली टिक करना है, या क्या करना है वो सारा इधर जो है। तो ये हम नीचे फिर ये सिलेक्ट ऑल या डी सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मौजूद है, तो एक दफ़ा प्रेस करने से ये सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, दूसरी दफ़ा इसी बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो ये डी सिलेक्ट हो जाता है। तो विद सिलेक्टेड हम अगर उसमें कोई एडिटिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिलीट या मूव टू या वगैरह वगैरह, हम ये आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये एक इसमें ये दिखाया गया है कि हाउ टू मेक क्वेश्चंस। ये मैं आपको रिमाइंड करा दूं इसलिए मैंने यहाँ पे ये आइकॉन जो है आपको रिफ्रेश कराने के लिए ये लिख दिया है। ये जो है ये वर्डिंग और सेटिंग्स ऑफ द आइटम, पहला जो है जिसमें हाथ से पकड़ के हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, दूसरा जो कि आई का निशान है, ये शो या हाइड का आइकॉन है जिसमें हम क्या छुपाना चाह रहे हैं क्विज के स्टेटमेंट में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, और क्या शो करना चाह रहे हैं। इसी तरह लेफ्ट और राइट जो मूवमेंट इंडेंट करने का जो ऑप्शन है तीसरे नंबर पे, ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है। इसी तरह ये जो एरोज हैं ये अप एंड डाउन एरोज जो कि आमतौर पे मूव ब्लॉक्स के लिए यूज़ होते हैं, इनकी हमें क्वेश्चन क्रिएशन में तो कहीं ज़रूरत पेश नहीं आती। इसी तरह ये है मूव आइकॉन अलाउज यू टू मूव एन आइटम टू अनदर टॉपिक और ब्लॉक, और ये जो अगर क्रॉस चेयर्स जिसको हम कहते हैं, जिससे आप ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप जिसको आप कह सकते हैं। इसी तरह ये डिलीट, और ये ग्रुप आइकॉन कि अगर कोई ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप में ये दी गई है क्विज या असाइनमेंट। इसी तरह रोल्स आइकॉन अलाउज यू टू असाइन रोल्स लोकली इन द आइटम, जो भी हमने करना हो। और इसी तरह अगर हमने हाईलाइट करना हो कोई सेक्शन या कोई एज ए करंट, तो उसमें हम ये कर सकते हैं। कॉमन सेटिंग्स टू ऑल द क्वेश्चन टाइप्स, तमाम क्वेश्चन में जो कॉमन कुछ सेटिंग्स जो हैं जो रिक्वायर, वो यहाँ पे स्टेट की गई हैं इस स्लाइड नंबर 8 में। इन द क्वेश्चन बैंक इफ़ यू क्लिक क्वेश्चंस का वहाँ पे टैब आपको नज़र आएगा।
इसी तरह अब आपने उसमें से डिसाइड करना है कि कौन से फोल्डर में या कौन सी कैटेगरी में आप क्वेश्चन जो हैं वो रखना चाह रहे हैं, उनकी चॉइस है। उसके बाद जो है नए क्वेश्चन के ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट न्यू क्वेश्चन, अगर हमने नया क्वेश्चन कोई क्रिएट करना है। अगर पहले को डिलीट करना है तो वो जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था, स्लाइड नंबर 6 में, कि उसमें डिलीट का ऑप्शन मौजूद है, आप उसको वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपने नया क्वेश्चन क्रिएट करना हो तो उससे वो जो ड्रॉप डाउन एरो मैंने आपको दिखाया था वहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरह आगे कोई क्वेश्चन के आपने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, कोई उसका कोई नाम देना है, कोई गाइडलाइन है, कोई और इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो यहाँ से हो सकती है। एक और बात जिसका कॉमन सेटिंग में हमने ख्याल करना है वो है क्वेश्चन के टेक्स्ट के बारे में। यानी हम क्वेश्चन टेक्स्ट में हम बताते हैं कि डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये किस किस्म का क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। क्या ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होगी, मैचिंग बॉक्स, यानी बॉक्स के एक तरफ एक इंफॉर्मेशन है और दूसरी तरफ दूसरी इंफॉर्मेशन है, तो उनमें से कौन से वर्ड का क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, या मैचिंग हो सकता है, या मीनिंग हो सकता है। कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आमतौर पे इस किस्म के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन ग्रेड इज़ द मार्क दैट विल बी अवॉर्डेड फॉर ए करेक्ट आंसर। ये अगर कोई क्वेश्चन जो है वो सही आपने सेलेक्ट किया है तो फिर ये डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन ग्रेड। उसके अलावा पेनल्टी, अगर कोई फ़र्ज़ करें हम कोई पेनल्टी सेट करना चाह रहे हैं कि अगर कोई आंसर सही नहीं देता है, इनकरेक्ट आंसर देता है, तो उसकी क्या पेनल्टी है। आम तौर पे 1/25 या इस तरह के 25% या 0.025 या जो भी क्राइटेरिया फिक्स करना चाहे हम इसमें पेनल्टी के तौर पे कर सकते हैं कि अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया तो आपके करेक्ट आंसर का कितने % जो है वो कम हो जाएगा आपके टोटल ग्रेड में से। इसी तरह एडाप्टिव मोड को ऑन ऑफ करके हम ये बता सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो क्या जो है वो सबमिट करें इंडिविजुअली, या तमाम क्वेश्चन को अलग-अलग सबमिट इंडिविजुअली हर क्वेश्चन को सबमिट करें, या तमाम क्वेश्चंस को करने के बाद एक साथ सबमिट करें। इसमें ये ऑप्शन है। इसके अलावा हम जनरल फीडबैक अलाउज यू टू गिव द सेम फीडबैक टू ऑल द स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आंसर दे गिव। हम ये भी सेटिंग कर सकते हैं कि क्या हमने कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ देनी है स्टूडेंट्स को या नहीं। तो इसमें ये कैटेगरी, ये इसमें आप देखें यहाँ पे जैसे ऊपर दिया हुआ है कैटेगरी, तो यहाँ पे जो बात हो रही थी कैटेगरी की, ये जो है तो ये यहाँ पे इसमें ये दिखाया गया है, ये कैटेगरी और क्वेश्चन नेम, न्यू क्वेश्चन और क्वेश्चन टेक्स्ट। ये टेक्स्ट के बारे में ये बॉक्स है, ये जो सब विंडो है, इसमें आप ये उसका जो है स्ट्रक्चर है कि उसका ये जो फॉन्ट के बारे में और लैंग्वेज के बारे में सिलेक्शन। इसके अलावा ये बाकी फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं जो आमतौर पे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में यूज़ होते हैं। बिल्कुल उसी तरह के ये टूल्स हैं जो ये मेन्यू है पूरा, जो कि वहाँ पे सारे यूज़ होते हैं। इसके अलावा अब इसमें
फॉर्मेट से रिलेटेड कि क्या फॉर्मेटिंग टूल हम HTML यूज़ कर रहे हैं या कोई और जो भी अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशन, या हम स्टूडेंट को कह रहे हैं कि ये कौन सा यूज़ करे इसमें से टूल। इसके अलावा इमेज टू डिस्प्ले, नो इमेजेस हैव बीन अपलोडेड टू योर कोर्स येट। अगर कोई इमेज अपलोड होगा तो ये मैसेज डिलीट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन ग्रेड कि क्या ग्रेड हम दे रहे हैं, एक स्टेटमेंट को 1 मार्क असाइन कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दिस इज़ टीचर चॉइस। और पेनल्टी अगर कोई, जैसे मैंने बताया, डिसाइड करना चाहे तो यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 10% पेनल्टी जो है वो सेट हुई है, तो हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आमतौर पे कम होती है, 10% बहुत बड़ी पेनल्टी होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि अगर वो इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट करता है तो उसके जो करेक्ट आंसर का 10% है वो उसमें से लेस हो जाएगा। ये जनरल फीडबैक के लिए ऑप्शन है। अगर टीचर चाहे तो जनरल फीडबैक के कोई ऑप्शन यहाँ पे दे सकता है। अब कुछ क्वेश्चन की टाइप और उनके यूज़ क्या हैं कि कौन सा, किस टाइप का क्वेश्चन का पर्पस क्या है। मसलन कैलकुलेटेड क्वेश्चन, कैलकुलेटेड क्वेश्चन का जो यूज़ है टू क्रिएट लॉट्स ऑफ वर्जन्स ऑफ ए मैथमेटिकल क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यू। मसलन उसमें से कोई एक आंसर ठीक हो सकता है, और लेकिन पॉसिबली ऐसे तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है जो 4-5 ऑप्शन जो भी आंसर्स के होते हैं कि अगर स्टूडेंट एक छोटी सी मिस्टेक करे तो वो जो भी आंसर जो कि इनफैक्ट इनकरेक्ट होता है वो भी उस लिस्ट के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह मल्टीपल जो ऑप्शंस होते हैं मिस्टेक करने के, उनमें से जो आंसर्स निकलते हैं वो सारे उधर लिस्ट किए होते हैं, और स्टूडेंट को बाज़ औक़ात एक गलती के बाद यकीन आ जाता है कि उसने गलती नहीं की क्योंकि आंसर मौजूद है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन दैट माइट बी यूज़फुल फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट। ये उसके बारे में स्टूडेंट को क्वेश्चन के बारे में, उसके नेचर, उसके यूज़ के बारे में बताया जाता है कि नेक्स्ट जो है वो क्या है। तो सम इंफॉर्मेशन इज़ गिवन जो कि उसके लिए यूज़फुल हो सकती है कि अगला क्वेश्चन जो है वो जो अटेम्प्ट करेगा वो किस किस्म का हो सकता है। इसी तरह ऐसे ये डिस्क्रिप्शन जो है अगेन डिपेंड्स कि अगर आप ये डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, आमतौर पे स्टूडेंट को एक अलार्म करना होता है, उसको एक वार्न करना होता है कि वार्न तो नहीं, अलार्म करना होता है कि उसको जो अभी जो क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, ताकि वो टाइम मैनेज कर ले और मेंटली कंपोज हो जाए। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं टू आस्क क्वेश्चंस दैट रिक्वायर एन आंसर दैट इज ए कपल ऑफ पैराग्राफ, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू मार्क इट मैनुअली। ये ऐसे क्वेश्चन में आमतौर पे, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर फिक्स करना इंतहाई मुश्किल है। पैरामीटर्स फिक्स किए जा सकते हैं कि मसलन मैं एक जर्नल ऐसे राइटिंग में आमतौर पे जो पैटर्न फॉलो होना चाहिए ये होता है, जब आप किसी टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं तो इनिशियली उसको डिस्क्राइब करना होता है। आप बताते हैं कि ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में है, इसमें इसकी क्या अहमियत और किस तरह से इसके मीनिंग आप हाईलाइट करते हैं। बेसिकली आप अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करके उसमें हाईलाइट करते हैं। फिर उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से कि ये जो टॉपिक जिस पे आप काम करने जा रहे हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, लोग इसके बारे में फेवर में या इसके अगेंस्ट क्या कहते हैं, उनको खूबसूरत आर्गूमेंट्स के साथ आप पेश करते हैं।
फिर तरतीब में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि आपकी अप्रोच जो है इस टॉपिक के बारे में, टाइटल के बारे में दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ है या सिमिलर है। तो मेरी एडवाइस ये होगी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आम तौर पे ये डिस्क्रिप्शन और ऐसे टाइप और जो यानी प्रेजेंटेशन आम तौर पे वीक होती है स्टूडेंट्स की, मेरी एडवाइस ये होगी कि आप ये स्टेप याद रखें। जब भी किसी चीज़ के बारे में आपको ऐसे लिखना हो, आप कभी भी डायरेक्ट उसकी फेवर में ना जाएं, ना डायरेक्ट उसके अगेंस्ट जाएं। आप डिस्क्राइब करें, उसके फेवरेबल आर्गूमेंट्स को एक्सप्लेन करें, उसके अनफेवरेबल आर्गूमेंट्स को एक्सप्लेन करें और फिर अपनी राय दें। तो जब आप फेवरेबल और अनफेवरेबल आर्गूमेंट्स दे रहे हों तो यहाँ दूसरों का हवाला दें। जब आप अपनी ओपिनियन उसमें से रास्ता बनाते हुए जब आप शेयर करें तो उसमें आप अपनी ओपिनियन को भी आर्गूमेंट्स के साथ, रीजनिंग के साथ आप बयान करें। ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखें और अपने आप से क्वेश्चन पूछें उस टॉपिक के बारे में और उन क्वेश्चन को आंसर करें कि पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं। ये एक अच्छा क्रिटिकली इवेल्युएटेड एक ऐसे जो है लिखा जाता है इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन में भी इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आमतौर पे रिटर्न को चेक किया जाता है, इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर फिक्स नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये ह्यूमन नेचर है कि हर आदमी जो किसी भी टॉपिक के बारे में सोचता है उसका अपनी थिंकिंग है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक वो आंसर तो जाहिर है कि एक डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन पर्सपेक्टिव डिफरेंट होंगे, आर्गूमेंट्स डिफरेंट होंगे, जो कि होने भी चाहिए। इसके अलावा कुछ एम्बेडेड आंसर्स क्लोज, जिसको हम कहते हैं टू फिल इन द गैप्स इन अ पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट। ये पेट नॉन वर्ड्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, नाम होते हैं चीज़ों के जो वहाँ पे फिल किए जाते हैं। मल्टीपल चॉइस टू आंसर द क्वेश्चन वेयर देयर इज अ लिस्ट ऑफ आंसर्स टू चूज फ्रॉम। तो इन क्वेश्चंस में आमतौर पे लिस्ट ऑफ आंसर्स, पॉसिबल आंसर्स गिवन होते हैं, ए बी सी डी, बाद औक़ात ई तक होता है, 5 पॉसिबल आंसर्स दिए होते हैं, बाद औक़ात 4 पॉसिबल आंसर्स दिए होते हैं। तो उनमें से कोई चूज़ करना होता है। बाद औक़ात उनमें एक एडिशनल स्टेटमेंट भी होती है कि ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शंस भी दी जाती हैं। शॉर्ट आंसर टू क्रिएट मैथमेटिकल क्वेश्चन वेयर द स्टूडेंट्स एंटर द आंसर इनटू ए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने आंसर ऐड करना होता है और उसका शॉर्ट आंसर जो है वो बजाय इक्वेशन सॉल्व करने की। न्यूमेरिकल टू क्रिएट ए क्वेश्चन वेयर द आंसर इज अ वर्ड और ए फ्रेज। एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी जो स्टेटमेंट है वो कोई एक वर्ड होता है या फ्रेज होती है। इसी तरह रैंडम शॉर्ट आंसर मैचिंग, व्हेन यू हैव सम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इन योर Moodle क्वेश्चन बैंक एंड यू वांट टू ट्रांसफॉर्म दीज इनटू ए मैचिंग क्वेश्चन। तो ऑलरेडी उसके अंदर क्वेश्चन बैंक का होना बहुत, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी आप इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसके अंदर आपको टेस्ट बैंक डेवलप करने की भी ज़रूरत पेश आती है इसको सक्सेसफुली रन करने के लिए। इसके अलावा ट्रू फॉल्स टू डिसाइड वेदर द स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेबल। Description. This can be used when you want to provide some information that might be useful for the question. This is not a question. It is like the label in the question bank. It would not work well if you
choose to shuffle questions randomly. For example, number 1, if choose description from the create new question drop down menu and give the description a descriptive name. In the question text, enter the information you want to give to the students and then save changes. Students यहाँ ये समझें, जब इस किस्म की जब किसी भी क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत होती है, तो डिस्क्रिप्शन में हम आमतौर पे कोई भी उस क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट को कोई हिंट देना चाहें, कोई गाइडलाइन देना चाहें, या उस क्वेश्चन के बारे में कोई हवाला देना चाहे। बाज़ औक़ात दिया जाता है कि ये जो क्वेश्चन है ये इस बुक में से है, इस टॉपिक में से है, इस किस्म की डिस्क्रिप्शन हो सकती हैं, या कोई वर्ड लिमिट देना चाहें, या कोई और जो है उसके बारे में स्टेटमेंट जो है वो अटैच हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है? इसका हम एक नाम रखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन है, और इसके रिक्वायरमेंट मेंशन की जाती है कि क्या क्या पैरामीटर्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने वर्ड्स हो सकते हैं, क्या लिमिट हो सकती है। और अगर हम वो जो रिक्वायर्ड ऑप्शन को अगर हम नहीं समझते, तो फिर इसमें से आंसर गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ना, क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन को पढ़ना और समझना कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, इसका टेक्स्ट और इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो किस तरह से हमने करना है। तो आम तौर पे पैराग्राफ के बारे में लिमिट होती है कि कितने पैराग्राफ लिखने हैं, वर्ड्स के बारे में, फॉर्मेटिंग के बारे में, और कुछ और टेक्निकल जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो टीचर देना चाहे वो उसमें दे सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन टेक्स्ट एंटर योर क्वेश्चन, उसमें टेक्स्ट जहाँ पे क्वेश्चन का टेक्स्ट एंटर करना है वहाँ पे लिखते हैं कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। डिफ़ॉल्ट ग्रेड को हम चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मार्क्स द क्वेश्चन इज़ वर्थ, इस क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं उसको हम जितने भी मार्क्स उसमें लगाना चाहे वेट के हिसाब से। आमतौर पे क्विज़ेस के, असाइनमेंट्स के डिफरेंट मार्क्स, फिर नंबर ऑफ़ क्विज़ेस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स पे डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स हम असाइन करना चाह रहे हैं। बाज़ औक़ात टीचर कुछ बोनस क्वेश्चंस भी उसमें रखना चाह रहा होता है, जिसके मसलन पहले उसने कोई टफ क्वेश्चन दिए या क्विज़ेस मुश्किल थे जिसमें क्लास फेल हो रही हो, तो और उसके बाद उसने कुछ उनको गाइडलाइंस दी हो, कुछ समझाया हो, कोई एडिशनल मटेरियल दिया हो, उसकी वजह से उसमें इम्प्रूवमेंट आने के चांस या अपॉर्चुनिटी वो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। अच्छा, व्हेन यू मार्क द क्वेश्चन यू आल्सो हैव ए फील्ड फॉर राइटिंग कमेंट्स। इसके ऊपर स्पेशली उसके साथ जो है वो टीचर जो है वो कमेंट्स भी ऐड कर सकता है। मैचिंग क्वेश्चंस में आमतौर पे ड्रॉप डाउन एरोज दोनों तरफ एक तरफ क्वेश्चन लिखे होते हैं जिनका सीक्वेंस वाइज 1 2 3 या ABC या इस तरह से होता है। ये जो है इस तरह से ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो कोई वर्ड हो सकता है, कोई टर्म हो सकती है, कोई टेक्निकल टर्म हो सकती है आपके कोर्स के बारे में। वो टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आमतौर पे वो टर्म्स जो हैं लिस्टेड होती हैं, और दूसरी तरफ जो है वो ड्रॉप डाउन एरो में हम जो है उसमें स्टूडेंट्स को जब अलाउ करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल जितनी टर्म्स होती हैं उतने ही करेक्ट आंसर्स जो हैं वो करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट को एक मतलब हर एक ऑप्शन के सामने जाके उसने उस ड्रॉप डाउन एरो में से वो करेक्ट जो है वो चूज़ करना होता है। तो ज़ाहिर है इसमें हर एक ड्रॉप डाउन एरो में अगर यहाँ पे 5 टर्म्स या 5 वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो उनके 5 आंसर्स जो हैं वो हर एक में होंगे। तो ज़ाहिर है कि ये रिपीट नहीं होगा अगर ये टर्म्स और ये डिफरेंट है, लेकिन बाज़ औक़ात टीचर आपको डॉच कर सकता है
एग्जामिनर जो है आपको एक डॉजी क्वेश्चन जो है कुछ दे सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स जिनके कुछ सिमिलर मीनिंग्स निकलते हों, सिमिलर कंसेप्ट निकलते हों, लेकिन एट डिफरेंट स्टेज उनकी सेंस डिफरेंट होती है। उसमें फिर आपके एक भी आंसर हो सकता है, एक से दो का। तो बहरहाल इसमें अगेन इसकी सेटिंग जो है वो पहले से वो होती है। इसी तरह शफलिंग का इसमें ऑप्शन है, टिकिंग द शफलिंग बॉक्स मीन्स दैट द स्टेटमेंट क्वेश्चंस ऑन द राइट हैंड साइड ड्रॉप डाउन menus will appear in a random order each time the question is attempted। तो इसके बैक एंड पे शफलिंग काम कर रही होती है, क्योंकि अगर एक तरतीब से आ जाए तो फिर तो काम भी आसान हो जाए, क्योंकि और इसमें हर दफ़ा जब भी आप नेक्स्ट टिक प्लस ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करते हैं तो वो अंदर जो ऑप्शंस हैं वो शफल होते हैं और रीशफल होते हैं। इसी तरह स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन जो है द क्वेश्चन फील्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आंसर, द आंसर्स अपीयर टू द स्टूडेंट्स इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। और उसमें कोई भी जब सिलेक्शन के बाद जब आप उसको सेव चेंजेस कर देते हैं तो फिर आपको सबमिट करना पड़ता है, फिर आप उसको फर्दर चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह embedded कुछ answer the question type is used when you want students to fill in the gaps in a paragraph of the text। ये एक इन क्वेश्चंस का जो पर्पस है वो ये होता है कि स्टूडेंट जो है पूरे चैप्टर को अच्छी तरह पढ़े, हर टर्म्स के मीनिंग्स को अच्छी तरह पढ़े। बाज़ों का कुछ टेक्निकल डेफिनेशन होती हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जिनकी वर्डिंग जो है वो एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में आती हैं, तो उसी ऑर्डर में से कहीं से कुछ वर्ड्स जो है वो मिस कर दिए जाते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं, और फिर उनके मुताबिक जो है वो स्टूडेंट्स को चॉइस दी जाती है। तो ये कुछ एम्बेडेड आंसर्स जो हैं उनके उनका बिल्ट अप जो है कुछ इस तरह से किया जाता है। मल्टीपल चॉइस गैप इज कोडेड लाइक दिस, मसलन नंबर 1 MC रॉन्ग आंसर्स, नंबर रॉन्ग एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसी तरह इक्वल टू ऑलमोस्ट अप्रोचिंग या टेंड्स टू इनकरेक्ट आंसर। ये वो लॉजिक की एक ज़बान है जो हमें ये फिर इसमें ये करनी पड़ती है, लॉजिकल लैंग्वेज जो है वो करनी पड़ती है। तो आंसर नंबर और फिर इनकरेक्ट, और उसके बाद फिर करेक्ट आंसर क्या है, अप्रोचिंग, और उसके बाद उसका साइन ऑफ एप्रिसिएशन जिसको वेल डन। तो नंबर 1 जो है वो लेबल्स द गैप एज द फर्स्ट ऑफ this kind of gap, that is the first multiple choice gap in this paragraph। ये जैसे MC for multiple choice, the label gap type and the answers are separated by the columns। ये जो है जैसे 1 colon MC colon answers। तो ये आमतौर पे ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं, कॉलन जो है हम यूज़ करते हैं। Possible answers are separated by this symbol। The correct answer is preceded by equal to, or feedback is separated from the answer by the number sign। MC for multiple drop down menu, इसी तरह multiple choice का जो drop down arrow में कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर ऐसे, इसी तरह SAC शॉर्ट आंसर, केस मस्ट मैच, और N न्यूमेरिकल, NM न्यूमेरिकल, और इस तरह ये सारी लैंग्वेज जो है हमें वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है। उसके बाद फिर इसको पहले ट्राई कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात स्पेस और कॉलन जो सेमी कॉलन की मिस्टेक से ये फंक्शन नहीं करता।
वन और मल्टीपल आंसर्स, तो मल्टीपल आंसर्स अलाउड, ये नीचे ड्रॉप डाउन एरो से हम सिलेक्शन करके बता सकते हैं। और चॉइसेस कितने हैं, ए बी सी डी जितने भी आते। दिस क्वेश्चन टाइप इज यूज व्हेन you want student to answer question where there is a list of answers to choose from. There could be a single correct answer or several correct answer, multiple choice from the create new question drop down menu and give the question a descriptive name. इसको हम एक कोई नाम descriptive name, जिसे शुरू में मैंने बताया इसके कि क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन जो है वो हर लेवल पे डिफरेंट होती है, MCQs की डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होती है। इसमें मसलन अगर एक से ज़्यादा आंसर्स करेक्ट हों तो यहाँ पे हम उसकी वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसी तरह ऐसे राइटिंग में जिस तरह मैंने पीछे बताया कि उसके भी डिफरेंट तरीके से डिस्क्रिप्शन जो है वो डाली जा सकती है। उसके बाद फिर कंटिन्यूइंग द मल्टीपल क्वेश्चन, इसी तरह ये शफलिंग का ऑप्शन कि क्या हर दफ़ा जब वो हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाता है स्टूडेंट, तो क्या सिस्टम के अंदर जितना वो टेस्ट बैंक के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं क्या वो शफल करें या ना करें। अगर हम सिलेक्ट कर देंगे तो शफल करेगा, अगर हम डी सिलेक्ट करेंगे तो ये शफल नहीं करेगा। शफलिंग आम तौर पे जब बहुत ज़्यादा आपके पास क्वेश्चंस बनाए हुए हों तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अगर आपके पास चॉइस ही लिमिटेड हो तो फिर शफलिंग में जो कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उससे फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर जो है वो स्टूडेंट जो है वो गेस कर लेता है और उसका आंसर जो है वो सही होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह तो शफलिंग चॉइस का ये मैंने बता दिया। इसी तरह ड्रॉप डाउन एरो मेन्यू से आप सिलेक्ट करके इसको नंबर कर सकते हैं। For each of the multiple choice answer choices, you need to fill in the answer with the corresponding grade and the feedback. It is possible to add more answer choices by clicking blanks for 3 more choices. देखिए यहाँ पे एक हर जगह पे हमने फीडबैक के ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें इसका पर्पस ये होता है कि इंस्ट्रक्टर जो है after conducting 2-3 quizzes should be able to evaluate the toughness or the difficulty level of the quiz. तो उस फीडबैक से एक ये अंदाज़ा करना, ये कैलकुलेट करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। और ये जो स्टैंडर्ड है ये अब तकरीबन इंटरनेशनल लेवल पे ये यूज़ होता है कि फीडबैक जो है वो लाजमी रिकॉर्ड करके उसको इवेल्युएट करते हैं। फिर साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसको इवेल्युएट करते हैं। जो बड़े बड़े जो बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं जो टेस्ट बनाते हैं, जिनकी ज़िंदगी गुजरी है, वो इवेल्युएट करते हैं। फिर जैसे इंटरनेशनल लेवल पे GRE है, GMAT है, SAT है, इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक साइंस है, साइंटिफिक तरीके से क्वेश्चन डेवलप किए जाते हैं और उनकी असेसमेंट होती है, उसकी इवैल्यूएशन होती है, हर साल के रिजल्ट को इवैल्यूएट करते हैं। तो ये एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक जो उनके लिए यूज़फुल होता है कि क्या एशियन स्टूडेंट्स को या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इस किस्म के क्वेश्चन देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, इससे कम लेवल के हों, इससे हायर लेवल के हों, ये सारी चीज़ें। बल्कि यहाँ तक है कि फीडबैक की जो सिलेक्शन है उससे वो इतना हेल्पफुल होता है जो कि स्टूडेंट को नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन स्टूडेंट कितना एक के ऊपर टाइम लगा रहा होता है, उससे ऑटोमेटिकली फीडबैक जनरेट होती है। इसके अलावा कोई स्टूडेंट जो है पहले एक को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको छोड़ के फिर दोबारा उस दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे ऑप्शन पे अल्टीमेटली कोई एक ऑप्शन टिक करके आते हैं। तो इससे इवैल्यूएशन से, इसकी इवैल्यूएशन से पता चलता है कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कितना था और नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे क्वेश्चंस को या तो रिप्लेस किया जाता है, जो उनकी वर्डिंग चेंज की जाती है, जो उनके और कोई अप्रोप्रिएट लेवल जो है सेट किया जाता है। तो ओवरऑल फीडबैक सेक्शन इज यूजफुल बिकॉज यू कैन पुट द फीडबैक मैसेजेस दैट द स्टूडेंट्स सी व्हेन, इसमें लेकिन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन
इंटरनेशनल लेवल पे जैसे मैंने बताया कि वो तो अटैम्प्ट को, क्योंकि CBT बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो उनके पीछे बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रोग्रामिंग होती है और लर्निंग सिस्टम उनका जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको बड़ी टेक्निकल टूल से वो उसको इवेल्युएट करते हैं, उसका डिफ़िकल्टी लेवल और उसका इजीनेस जो है वो करते हैं। इसके बाद सेव चेंजेस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसी तरह, दिस क्वेश्चन टाइप इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ मैथमेटिकल क्वेश्चन वेयर द स्टूडेंट्स एंटर द आंसर इनटू द टेक्स्ट बॉक्स। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक्सेप्ट इट इज मैथमेटिकल इन नेचर। तो न्यूमेरिकल में आमतौर पे मैथमेटिकल या अरिथमेटिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, जो भी, लेकिन उसकी अगेन उसका डिस्क्रिप्शन, नेम एंड एवरीथिंग शुड बी देयर। इन द आंसर सेक्शन पुट द करेक्ट आंसर, इट्स करस्पॉन्डिंग ग्रेड 100%, एक्सेप्टेड एरर एंड फीडबैक विच कैन बी एन ऑप्शनल, और फिर आप चेंजेस को सेव करके आप ये कर सकते हैं। इसी तरह द अदर टाइप ऑफ question is true false statement. So here we need to choose the short answer from the create new question. Create new question के ऑप्शन में जाके short answer, उसके बाद give question a descriptive name, कोई भी उसका नाम जिस तरह हम पीछे करते आए हैं। In the question text make a statement that is true or false. तो जो भी हम स्टेटमेंट जो भी डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द एग्जामिनर कि क्या वो जो स्टेटमेंट है एक्चुअली वो ट्रू है या फॉल्स है, और फिर करेक्ट आंसर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके, उसमें ड्रॉप डाउन एरो को प्रेस करके उसके मेन्यू में जाके हम वहाँ पे ये टाइप कर सकते हैं कि असल में करेक्ट आंसर है क्या। तो फिर उसके बाद गिव फीडबैक करस्पॉन्डिंग टू व्हेन स्टूडेंट्स चूज ट्रू और फॉल्स, और फिर उसमें सेव चेंजेस करके ये हमारा इस तरह से क्विज जो है हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, मैं वेरी क्विकली हम रिव्यू कर लें। आज के क्वेश्चन में हमने सीखा कि मूडल में क्विजेस किस तरह बनाते हैं। क्विजेस बनाते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन हम देना चाह रहे हैं, ऐसे टाइप हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग हैं, मैचिंग स्टेटमेंट्स हैं, या कि कुछ और। तो ये हम यहाँ से ये जो ये विंडो ये आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है कि ये क्वेश्चन बैंक में को क्लिक करके हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन जो हैं वो डाल सकते हैं। इसमें प्रेफरेबली ये होता है, मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक डेवलप करने जा रहे हैं या इस तरह के कोई क्विज़ेस डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो आपको किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर एटलीस्ट वो राइट अप में बेशुमार क्वेश्चंस होने चाहिए। राइट अप में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप वहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकें क्वेश्चन बैंक बिल्ड करने के लिए इन मूडल। तो मूडल में क्वेश्चन बैंक बिल्ड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास पहले से कहीं लिखा हो। फिर ये मैंने आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड इसके आइकॉन्स जो कि हम रिपीटेडली इसमें यूज़ करते हैं। तो हमारा जो मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट यहीं से होता है कि क्वेश्चन बैंक के बाद फिर हम कैटेगरी में जाते हैं, और कैटेगरी के बाद फिर हम बताते हैं कि वेदर वी वांट टू क्रिएट न्यू क्वेश्चन, और फिर उसमें बताते हैं कि किस टाइप, व्हाट टाइप ऑफ एक्शन इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट। ये यहाँ से न्यू क्वेश्चन और क्वेश्चन टेक्स्ट अगर कोई लिखना है उसकी डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है, और ये जनरल फीडबैक का जो बॉक्स है इसके अंदर क्वेश्चन के बारे में फीडबैक। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो उनकी नेचर और उनका यूज़ जो है वो क्या है ये हमने डिस्कस किया। और ऐसे क्वेश्चन के बारे में मैंने कुछ बताया कि ऐसे क्वेश्चन
आप किस तरह सॉल्व किस तरह करें, और ऐसे क्वेश्चन आम तौर पे जब डिज़ाइन किए जाते हैं उनकी स्टेटमेंट के साथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट जो है वो मेंशन करना इंतहाई ज़रूरी है। फिर मैचिंग क्वेश्चन में ये जिसमें शफलिंग की ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एम्बेडेड आंसर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स और मिसिंग वर्ड्स कोई हो सकते हैं, वो MCQs कैसे करते हैं और MCQs में शफलिंग की ऑप्शन जो है वो कैसे अप्लाई होती है। तो स्टूडेंट्स फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर की तरह, लेकिन इसमें नंबर्स में आंसर होते हैं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। और ये हमारा आज का लेक्चर है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।